গোটা দেশের সাথে 14ই সেপ্টেম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে স্বচ্ছতায় সেবা পালন করা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যেও। আগরতলার গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে সাফাই অভিযান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিরোহিণী চাহিয়াছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে তোমার কুঞ্জ পথে সজর ছায়াতে, ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে তোমার কুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে, নয়নে জাগিছে করুণ রাগিনী শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। সুখ নামে যদি সুখ আসে জীবনে, বলে মনে বলে চলে না ভেবে খোলা যদি তোরে ডাকে বসন্ত আসে সাগরে, বলে মন প্রেম বলে প্রেমহীন জীবনে, জীবনে না থাকো প্রেমে থাকো সপনে, ওরে বল মনে বল যে জানি সে জানি সুখ নামে যদি সুখ আসে জীবনে। উঠালি পাতালি পানি ছনাতে ছনাতে করে রে, খলখলাইয়া হাসা উঠে বউঠান হাঁটো চাইয়া, হাসে বউঠান হাঁটো চাইয়া, এই লাউ ছাড়িয়া দে আর উড়াইয়া দে, ছল ছলাইয়া চুলুকি না মাছ দইরা দিয়া, চলুক মাছ দইরা দিয়া, মাছ দইরা দিয়া, চলুক মাছ দইরা দিয়া। তালে পাওয়ের ফালে নাওয়ের গুলুই কাঁপে, চিনি চিনাই হারাবে
মাপে রোদ তুফান মাপে ঢেউয়ের তালে নাওয়ের ফানে নাওয়ের গুলোয় কাঁপে চিনি চিরাইয়া নাওয়ের ছেয়া রোদ তুফান মাপে মাপে রোদ তুফান মাপে আরে চিরলে চিরলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরে খেলে রে আরে চিরলে চিরলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরে খেলে রে বাদল উদালি গায়ে পানিতে জমিতে হেলে রে আরে তোর তুলাই হাইলো দেওয়া জিনকে হাতে লইয়া আইলো জিনকে হাতে লইয়া এই নাও ঝালিয়া দে আলুরাইয়া দে ছল ছলাইয়া ঝলকে না মাছ দইরা দিয়া ঝলক মাছ দইরা দিয়া মাছ দইরা দিয়া ঝলক মাছ দইরা দিয়া हमने जब से संकल्प लिया हर कदम कठोर जतन किया स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे साकार मुश्किल सपन किया तेरी धड़कन मेरी धड़कन हर धड़कन है स्वच्छ भारत की हर धड़कन है स्वच्छ भारत की मैं डगर बुहारूं पलकों से मेरे द्वार पधारा स्वप्न नया डगर डगर है शहर शहर पर स्वच्छ बन चला देश मेरा स्वच्छता से हमको स्वास्थ्य मिले स्वच्छता ही लाए समृद्धि स्वच्छता सशक्त करे बने देश की आत्मनिर्भर भी चल शपथ दोहराए हम सारे हम सारे हम सारे गली मोहल्ला सड़क कॉलोनी हमें किसी नजर पर बढ़ना रे शहर शहर पर हमें बढ़ना रे बढ़ना रे हमें बढ़ना रे मैं रोशनी हिम्मत लेके हर स्वच्छ शिखर हमें चढ़ना रे हर मंजिल हमको पाना रे जोश लिए हमें
ইমা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 17 সেপ্টেম্বর থেকে 21 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 5 দিন ব্যাপী ফান্ড রেইজার এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হয় তুলসীবতী উচ্চয়ন্ত মার্কেটে। প্রতিদিন দুপুর 2টা থেকে রাত্র 8টা পর্যন্ত চলেছে এই প্রদর্শনী। এই 5 দিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী মূলত বন্যায় কবলিত মানুষদের পাশে থাকার জন্য অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। এই সম্বন্ধে ইমা ফাউন্ডেশনের একজন সদস্য বলেন, हम पहले एक वर्कशॉप कर चुके हैं और उस वर्कशॉप में हमने ये सब कुछ पेंटिंग्स बनाए हैं। और अभी इस सिचुएशन को देखते हुए त्रिपुरा की जो फ्लड सिचुएशन थी, तो हम इसमें से जो भी सेल होगा हम चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे बाय इमा फाउंडेशन एंड इट्स प्लेस टू। 24 সেপ্টেম্বর 2024 দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার উদ্যোগে আয়োজিত হয় হিন্দি সপ্তাহ 2024। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রামপ্রকাশ ইয়াদব, দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার উপ অধিকর্তা RS টাইগার, সহ অধিকর্তা JB চারাকপল্লী, হেড অফ প্রোগ্রাম আলপনা দাস সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। এই দিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন অতিথিরা। हिंदी सप्ताह के इसमें प्रारंभ किया है आज के दिन। इससे पहले एक हिंदी का एक दिन का हिंदी दिवस भी किया थे, कार्यशाला। इस समय भी अच्छा लगा, इस समय बहुत सारे लोग आए। अभी आज के हिंदी सप्ताह के बारे में हमारे अतिथि जी ने पूरे बता दिया, सब कुछ बता दिया। सर भी उसका एक सप्ताह चलने वाला पूरे कार्यसूची में बताया गया है। इसका सभी अपने इसका पूरा लाभ उठाएंगे और हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। एटलीस्ट जिसे लिखना नहीं आता बोलना तो सीखिए पहले। कई लोग बोलना नहीं आता किसी को, अगर वो बोलना सीखे तो बाद में लिखना सीखना भी सीखे, जरूर सीखे। ये मेरा अनुरोध भी है इससे, क्योंकि कई लोगों को हिंदी का प्रॉब्लम है, जरूर है, बात करने में थोड़ा दिक्कत भी होता है। इससे अच्छा थोड़ा बोलना, जो बोलता अच्छा बोलता उनसे भी थोड़ा इंटरेक्शन यानी कि बातचीत में हो जाएगा, बात आ जाता है। सीखने का तो सीख सकता है, मन होना चाहिए पहले सीखने के लिए। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस होल्डर होने के बाद तो आ ही जाता है। में हम लोगों को इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बोलने के लिए, काम चलाने के लिए हम लोग बोल देते हैं। और ऑफिस से कोर्स भी कराया गया, 60 तो आ रहे थे तब से बहुत दिन से दिन। लास्ट ईयर जितना किया मुझे लगता है आज का दिन में थोड़ा पढ़ाई में राष्ट्रीय से पूरा बेहतर हो रहा है। इसके लिए असर तो बढ़ रही है हम लोगों के ऊपर, तो और भी आगे बढ़ेंगे। और उच्चारण करने के बाद भी एक उत्साह मिलता है और काम के लिए दिवस के टारगेट लेके, तो हम भी आगे बढ़ेंगे सब कुछ। आपको नमस्कार। मुझे कहना इतना ही, जैसे सर ने बोला एक एक शब्द लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपके साथ एक एक शब्द और लिखने की कोशिश करेंगे, नोटिस वगैरह। हम लोग हिंदी दिवस के साप्ताहिक समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन इसलिए मनाया जाता है, ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन हिंदी को भारत में राजकीय दर्जा मिला था और राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए 14 सितंबर को हम लोगों के लिए खास दिन है। और हिंदी मातृभाषा हमारी है और इसे हमारे बोलने चालने का तरीका है, लेकिन ये हमारी परंपरा और संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा है। नाम मनोज कुमार साहू, मैं बीटी के पटना से आया और हिंदी सप्ताह 2024 के लिए सभी को और सभी को हार्दिक हमारे ज्येष्ठ प्रबंधक मुख्य सम्मानीय उप निर्देशक और बाकी सभी को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार।
हम सभी को पता है हिंदी हमारी राजभाषा है। सन 1949 में जब हमारा संविधान प्रणीत नहीं किया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी, तब बगीचो सभा में हिंदी को राजभाषा के तब दिया गया है और देवनागरी अक्षर तब चालू था। सबसे प्रथम 1953 में 1953 में हिंदी दिवस का चालू किया गया। जो आज हम लोग हिंदी का जो नया रूप देखा हूँ, आज इस सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। पहले तो हम लोग पगवाड़ा दिवस मनाता था हिंदी का, तो आज से शुरू हुआ है कि ये साप्ताहिक प्रतियोगिता, उसमें जो जो हम लोगों का प्रतियोगिता दिया गया है, हम सोचते हैं सभी लोग इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाए, सभी ने भाग ले। और सबको कहता हूँ हमारा जो ये राजभाषा है, ये जो हिंदी भाषा है, ये जितना हो सके हमारा सरकारी दफ्तर में और देश में और भी आगे बढ़ाए और आगे ले जाए, क्योंकि ये एकता का एक सद्भाव रखता है। हम कार्यालयीन कामकाज में अगर हिंदी का अनुप्रयोग करेंगे, तो अगर हम कार्यालय से बाहर कहीं जाते हैं तो हमारी अगर हिंदी में स्किल में सुधार होता है तो हमारे लिए बोनस होगा, हमारे बातचीत में उससे सुधार होगा, हमारा संवाद अच्छा होगा। कहीं हम अपने स्टेट से, अपने राज्य से बाहर जाते हैं तो हमारे संपर्क के रूप में हिंदी का प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे हमें दिल्ली जाना है या अन्य राज्यों में जाना है, हमारी मातृभाषा अलग अलग है, तो जो हम कम्युनिकेशन के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें हिंदी भाषा ही आती है, जिसको हम सामान्य रूप में बोलते हैं राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का हम बहुतायत प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो हम गतिविधियां या कार्यक्रम अपने कार्यालयों के अंदर करते हैं, ये हमारा राजभाषा है, जिसे आप आर्टिकल 343 में भारतीय संविधान में दिया गया है और 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने स्वीकार किया, संसदीय हमारा जो क्या कहते हैं संविधान सभा ने, और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो उसी के क्रम में ये लागू हो गया। तो ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जैसे हम अपना कार्यालयीन कामकाज करते हैं, जो हमें जिम्मेदारियां असाइन की गई हैं, वैसे ये हमारा राजभाषा का काम भी हमारे लिए असाइन किया गया है, चाहे प्रशिक्षण का हो, चाहे कार्यालयीन कामकाज में उसके प्रयोग का हो। क्योंकि हम जो इसमें प्रतिवेदन या रिपोर्ट देते हैं अपने कार्यालय से राजभाषा विभाग को या हेडक्वार्टर के, उसमें हर साल हमें ये निर्देश होता है कि हम उसमें कुछ इजाफा करें। हम इस साल अगर मान लीजिए 2 सेक्शन में काम कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें हम बढ़ावा दें। और जो हमारी संसदीय राजभाषा समिति आती है वो भी इस बात का उल्लेख करती है, आपसे हमसे पूछती है, कार्यालय प्रमुख से पूछती है कि आप जो हिंदी का कामकाज कर रहे हैं, पूर्व में आपका कामकाज का क्या प्रतिशत था और अभी आपके कामकाज का क्या प्रतिशत था, आपने कितना बढ़ावा दिया। तो इसकी भी हमें जवाबदेही देनी होती है, इसका हमें रिपोर्टिंग करनी होती है तिमाही और वार्षिक रूप में। इन सब मामलों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर ही हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो हमें आमंत्रित करने के लिए, आप सभी यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब गतिविधियों में राजभाषा से संबंधित जो हमारी प्रतियोगिताएं हो रही उसमें आप शिरकत करेंगे, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और पुरस्कार भी हासिल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। निताई जी ने 4 पंक्तियां सुनाई, तो 2 पंक्तियां मैं भी सुना देता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। हम लोग चर्चा करते हैं ना अपने लाइफ में या जीवन में कि कोई नया काम सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, तो उसमें हमें मुश्किल होती है या चुनौती आती है। तो जो चुनौतियां या मुश्किलें हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें कुछ दे के जाती हैं। अगर हम उनका सामना करते हैं, उनसे समाधान अगर ढूंढते हैं, तो कुछ हमारे स्किल में, हमारे क्या कहते हैं गुण में जोड़ती हैं, अतिरिक्त जोड़ती हैं। तो 4 लाइनें हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो अगर हम कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो हमें कुछ अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, नई क्वालिटीज हमारे स्किल में जुड़ेंगे, जो हमारे लिए बोनस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष हम हर वर्ष तो हिंदी पखवाड़ा मनाते थे, लेकिन इस बार कार्यक्रम को थोड़ा सा सीमित किया है। और इस बार 14 और 15 सितंबर को मुझे दिल्ली में जो
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ, उसमें भाग लेने का अवसर मिला। वहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और बहुत सारे महानुभाव, हिंदी के प्रख्यात जानकार लोगों को सुनने और देखने का अवसर मिला। और मैं कार्य व्यस्तता की वजह से थोड़ा हिंदी पखवाड़ा न मनाकर हम लोग इस बार हिंदी सप्ताह मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन समाचार हैं, उनके जो संदेश है उसे आप सबको पढ़कर सुनाया जाए। तो उनके जो अपील है वो मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। राजभाषा के प्रति सम्मान एवं सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संकल्प के साथ हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हिंदी एक सरल, समृद्ध और सशक्त भाषा है। हिंदी भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, विचारों और सपनों को व्यक्त करने का एक सुदृढ़ माध्यम है। यह एक ऐसी भाषा है जिसने सदियों से भारत की विविधता को एकजुट रखा है और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से बातचीत हृदय करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। गतिशीलता हिंदी भाषा का बुनियादी चरित्र है और हिंदी अपनी लचीली प्रकृति के कारण स्वयं को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदल लेती है। वैश्वीकरण के दौर में हिंदी आज भाषा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, कला, वाणिज्य इत्यादि लगभग हर क्षेत्र में अपनी समृद्धता का प्रदर्शन कर रही है। व्यवसाय की दृष्टि से हिंदी संचार माध्यम के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराती है। दूरदर्शन ने अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समाचारों के प्रसारण के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महानिदेशालय में हिंदी माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महानिदेशालय में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। हम अपने महानिदेशालय के साथ साथ इसके सभी अधीनस्थ केंद्रों, कार्यालयों से अपील करते हैं कि वे अपने अपने केंद्र, कार्यालय में हिंदी दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा माह का आयोजन करें। इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। आइए हम सभी हिंदी भाषा में अधिक से अधिक कार्य करके राजभाषा की प्रगति में अपना योगदान दें। हमारा पुनः आग्रह है कि प्रतिदिन फाइल में एक अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ हिंदी में लिखने का पूरा प्रयास हो। सभी टिप्पणियाँ मतलब नोटिंग में कम से कम एक एक वाक्य हिंदी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए। हिंदी में सरकारी कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। मुझे आशा है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करेंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे और अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करेंगे। दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। प्रिया कुमार, दिनांक 14/9/2024। বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে শিল্পী এবং কারুজীবীরাও স্ব-উদ্যোগী হতে পারেন। মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধাতে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী। এই উপলক্ষে তিনি স্মারক ডাক টিকিটেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র এবং স্কিল সার্টিফিকেটও তুলে দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্র সরকারের আচার্য চাণক্য দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র উদ্বোধনের পাশাপাশি পুণ্যশ্লোক অহিল্যা দেবী হোলকার মহিলা স্টার্টআপ প্রকল্পেরও সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার 1 বছর পূর্তি 2023 সালের বিশ্বকর্মা পুজোর দিন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের সূচনা করেন। এই উপলক্ষে আগরতলার ব্যাম্বো অ্যান্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই যে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা, হ্যাঁ এটা কি আপনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন? হ্যাঁ দিয়েছি, কয়দিনে? হয়তো আমরা 7 দিন 1 সপ্তাহ। এই যে প্রকল্পটা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, লোন পাইছেন নি? হ্যাঁ লোন পাইছি। কি মনে করেন লাভ হয়েছেন নি আপনার? হ্যাঁ আমরা লাভবান। হয়তো যেমন আমরা এটা দিয়েছি টাকাটা নিয়ে আমরা ব্যবসা করতে পারতেছি। তারা আমি যে মিস্ত্রি কাজ করি, মিস্ত্রি যন্ত্রপাতি কিনে টিনে আমি কাজ করতেছি, মানে আমরা উপকৃত হয়েছি এটা নিয়ে। হ্যাঁ আপনার নামটা, বাড়িটা? আমার নাম তপন সরকার, আমার বাড়ি বিজয়নগর। এই যে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা, এটা কয়দিনের ট্রেনিং দিয়েছিলেন এবং কত টাকা লোন পাইছেন, কি কাজ করেন? আমি একজন রাজমিস্ত্রি, 7 দিনের ট্রেনিং দিয়েছি, 1 লাখ টাকা লোন নিয়েছি। লোন পাইয়া কি করছেন? ওই ব্যবসার কাজেই, ওই বিল্ডিংয়ের মাল মেটেরিয়াল যেটা আমার দরকার এটাই আমি কিনছিলাম। এটা কি এই যে প্রকল্পটা অনেক কি আপনি উপকৃত হয়েছেন? আমি খুবই ভালো হয়েছে, আমরা খুব উন্নত হয়েছি, আমার ফুল ফ্যামিলি আমার এই যোজনার দ্বারা উন্নত হয়েছে। সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। নমস্কার। হস্তশিল্প প্রযুক্তিতে 2023 সালের সারা ভারতবর্ষে কিভাবে বলতে, আমরা তো আপনার পয়সা লাগে আমরা মানে ট্রেনিং করতে পারি না, ইচ্ছা থাকলেও আমরা পারি না। যেহেতু মোদিজি আমরা একটা সুযোগ করে দিছে বিশ্বকর্মা যোজনার থেকে, এটাতে আমরা অনেক খুশি। আমরা যদি লোন দেয় 1 লাখ টাকা, তাহলে আমরা আস্তে আস্তে পরিশোধ করব। আমরা যেই কাজটা করতেছি এটা আমরা একটু বড় করতে পারবো। অনেক ফারাক। আমি বাড়ির তো নিজস্বভাবে করতাম, এদিকে তো মনে করেন আমরা ট্রেনিং নিতে আসছি, আমরা আরও ভালো ভালো কাজ শিখতেছি, এবারে দিয়ে ভালো কাজ করার লেগে ইচ্ছুক। তো আমরা কোনো ট্রেনিং পাই না, কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না। তো এদিকে যেহেতু আইসি, তাহলে আমরা ভালো কাজও দেখলাম, শিখলাম। আবার যে লোন টোন লোয়ার টাকা টোকার অনেক কিছুই তো ব্যাপার আছে, নিজস্বভাবে তো পারি না। তো ওই দিক থেকে আমরা PM বিশ্বকর্মা যে আমরা ট্রেনিং করতেছি, ওই ট্রেনিং থেকে আমরা সাহায্য সহায়তা পাবো। আমরা কাজ হঠাৎ করে কোনো কাজ আইলে একটু অসুবিধা হয়, তবে কোনো অসুবিধা হয় নাই, আমরা কাজ করতেছি খুব ভালোই। হ্যাঁ আমি খুশি বলতে আমরা যে উদ্যোগ দিছে যে 15,000 টাকা এমনি স্যালারি মানে দেওয়া হবে, আর এমনি আমরা লোন হিসাবে 3 লক্ষ টাকা করে পাবো। যদি আমরা কোনো ব্যাংক লোন টোন না থাকে তাহলে আমরা 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন নিতে পারবো। হ্যাঁ এটাই মানে আমরা যাতে কর্ম করে খাইতে পারি। এখন তো আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করি, আর এমনি হলে তো আমরা নিজস্ব কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারি। देखिए हमारे सेंटर पे, हमारे इंस्टीट्यूट में 2 तरह की ट्रेनिंग चल रही है, बैम्बू कारपेंटर एंड बास्केटरी। तो ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी हमने आज तक करीबन 300 के करीब ट्रेनीज पास आउट करे हैं, और ये हमारा टारगेट मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये एक स्पेशल तरह का ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें हम सॉफ्ट स्किल भी देते हैं। उसके अलावा जो इनका इम्प्रूव टूल किट है, टूल किट कैसे यूज़ करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, वो ये टूल किट यूज़ करके अपना जो प्रोडक्ट है ज़्यादा बढ़िया तरीके से, ज़्यादा फिनिश और कम समय में बना सकते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। উপস্থিত রয়েছেন সচিব, সেক্রেটারি, উনি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, তাতে আমরা ধন্য। সিদ্ধ করবে, আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। হওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্য আমি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যে রূপায়ণ হচ্ছে প্রায় 50,000 অ্যাপ্লিকেশন আমরা স্কিমে পেয়েছি। এখানে 3টা স্তরীয় কমিটি আছে, একটা গ্রাম পঞ্চায়েত, তারপরে জেলা স্তরে এবং রাজ্য স্তরে। প্রায় 18,000 থেকে বেশি অ্যাপ্লিকেশন অনুমোদন করা হয়েছে। এই সবাইকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং দেওয়ার জন্য প্রায় 20 থেকে বেশি সেন্টার আমরা ওপেন করেছি, আরও অনেক সেন্টার এখানে ওপেন হবে।
ট্রেনিং হওয়ার পরে একটা কিট দেওয়া যাবে, যে কিট নিয়ে আপনারা কাজ করবেন। যেখানে আমরা এখানে দেখেছি বাইরে যে বাঁশ শিল্পী আমাদের কাজ করছে, এরকম সবাই কাজ করতে পারেন। আর আপনার উদ্যোগ স্থাপন করার জন্য 3 লাখ টাকা পর্যন্ত লোন দেওয়া হবে। এই জন্যেই ব্যাংকের যে প্রধান এখানে ভূমিকা রয়েছে, এই জন্যে আমরা ব্যাংক থেকে যারা ম্যানেজার ওদেরকে আমরা এই আলোচনা রেখেছি। তো আমি আশা করব কি আমরা গত 1 বছরের মধ্যে ভালো সাড়া আমরা পেয়েছি। আর এই স্কিম থেকে অনেক রোজগার আমাদের রাজ্যে নির্মাণ হবে। আর যে পিএম বিশ্বকর্মার যে মূল উদ্দেশ্য, এটা করার জন্য আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা অন্যান্য রাজ্য থেকে এখনই অনেক আগে আছে। আর আমরা এটা সবাইকে লাভ পৌঁছানোর জন্য আমরা চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। যে আমরা সবাই জানি 2017 সালে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী 17 সেপ্টেম্বর আমাদের 2023-এ উনি এই পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে দেশের যে আমাদের কারিগরি 18টা শ্রেণী গোষ্ঠীকে তাদেরকে অত্যাধুনিক টুলসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের প্রোডাকশন তৈরি করা, তাদেরকে আর্থিকভাবে লোন দিয়ে সহায়তা করা এবং তাদের প্রোডাক্টও যাতে সমস্ত জায়গায় আমরা পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য এই প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই বিশ্বকর্মা যোজনার প্রচলন করেছিলেন। আজকে 2024-এ দাঁড়িয়ে আমরা প্রায় 1 বছরে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আমাদের মোদিজি, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাষ্ট্র থেকে উনি জুড়বেন, আমরা সেই জিনিসটা উপলব্ধি করব। আমি জানি যে আমাদের রাজ্যে এই কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি, নাপিত, দর্জি প্রায় 18টা শ্রেণী গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদেরকে টুল কিট দিয়ে সহায়তা করা এবং ব্যাংকের মাধ্যমে লোন প্রদানের মাধ্যমে সেগুলি নির্বাহ করা, সেটা হলো এই পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মূল অঙ্গ। তার পাশাপাশি আপনারা জেনে খুশি হবেন, মাননীয় সেক্রেটারি সাহেবও বলছিলেন যে এখন পর্যন্ত এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 51,305টি আবেদন আমাদের এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে 18,000 কারিগরকে দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মোট 6,000 কারিগর সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে 4,300 জন কারিগরকে লোনের জন্য সেটা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে 1,300 জনকে ঋণ অলরেডি মঞ্জুর করা হয়েছে।